take permission from the Honorable Court to see my statement on behalf of the plaintiff. The Gajanan Plaintiff 1 and the Babulal Plaintiff number 2 has stated that the defendant 1, Govardhan, is real brother of them and they are member of the joint Hindu family. After the death of their father, Yasiram, defendant 1, Govardhan, used to look after agriculture opportunity of the family. The plaintiff have further alleged that after the death of the father, the disputed property, agricultural land, where survey number 40, situated in the village, was partitioned among the three sons, Yasiram, plaintiff and the defendants. The disputed land was the name of the defendant number 1, yet the whole disputed property was managed by the plaintiffs. The disputed land was partitioned among the plaintiffs and the defendant number 1 in oral in the presence of Punch in the year 1969 and subsequently the deed acknowledgement of the partition was written in year 1970 between the plaintiffs and the defendant number 1. The plaintiff was further alleged that they were a possession after the oral partitions. The defendant number 1 has no right in the disputed land after the partitions. Even though the defendant number 1 sold disputed land to the defendant number 2, Prakash Chand, on 5 January 1992 and the same deed so executed by the defendant. Now, in the favor of the defendant number 2, in the legal and the transaction is null and void. On the basis of the allegations, the plaintiff has prayed that it should be declared that they are the Bhumi Swami of the disputed land and the sale deed on 15 January 1992 is null and void and consequently the defendant number 2 is restrained from making any interruption from the possession of the disputed land. So I would like to request to the Honorable Court for defining the fact I have provided you. The plaintiff wants the relief for the declaration and sale deed to be null and void and restrained from the interference on the possession of the land. So, this is the plaintiff counsel and I would like to proceed the case further on the behalf of plaintiff by the reading of evidence. Gajanan plaintiff number 1, which is PW1, and Babulal plaintiff number 2, which is PW2, have stated in their statement that the disputed land was the property of joint Hindu family of them and defendant number 1. After the death of their father in 1969, the disputed land was partitioned and came in share of plaintiff. In this regard, the deed of acknowledgement Exhibit P1 was written in the year 1970. After the partition, the disputed land came in their possession. In cross-examination, Gajanan PW1 has admitted that he has two brothers who was not parties in this case as per the plaintiff pleading, who are not parties in this case, and apart from the disputed land, all brothers have 25 acres land and the same is being cultivated jointly by all the brothers. On behalf of the plaintiff, scriber of the deed of acknowledgement Exhibit P1, Ramesh PW3, has also been examined, who has stated that Exhibit P1 was written as per direction of the parties of the document. The plaintiff has also produced certified copy of Khasra Pansala Exhibit P2, which is relating to year 1965 to 1969, in which the disputed land is recorded in the name of defendant number 1, Swami, and possession holder. Plaintiff has also produced certified copy of the report of Patwari Exhibit P3, which was submitted by him to the Tehsildar in the year 1992, and the certified copy of the Panchnama Exhibit P4 prepared by the Patwari at the time of local inspection, and the certified copy of the report of revenue inspection Exhibit P5 regarding demarcation of the land, in which inspector has recorded plaintiff's possession of the disputed land. प्रस्तुत किए गए वाद पत्र का मैं खंडन करती हूँ तथा प्रतिवादी पक्ष की ओर से मैं प्रतिवचन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्रतिवादी गोवर्धन लिखित कथन प्रस्तुत करने से पूर्व ही मर गया। उसके विधिक प्रतिनिधिगण अभिलेख पर लिखे गए तथा एवं उनकी ओर से लिखित कथन प्रस्तुत किए गए। उन्होंने वादीगण के संपूर्ण अभिवचनों को स्वीकार करते हुए वादीगण द्वारा वाद पत्र में वर्णित सहायता की आज्ञप्ति उनके पक्ष में पारित किए जाने की प्रार्थना की।
प्रतिवादी क्रमांक 2 चंद्र प्रकाश ने वाद पत्र में किए गए अभिवचनों को अस्वीकार किया है एवं अभिकथित किया है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है। परंतु ऐसा वाद पत्र में लिखा गया है, परंतु प्रतिवादी क्रमांक 2 चंद्र प्रकाश द्वारा इसको अस्वीकार किया जाता है। राजस्व दस्तावेजों में प्रतिवादी गोवर्धन वादग्रस्त भूमि के स्वामी के रूप में दर्ज था एवं आधिपत्य में था। प्रतिवादी क्रमांक 2 चंद्र प्रकाश ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर प्रतिवादी क्रमांक 1 गोवर्धन से उक्त संपत्ति क्रय की है तथा दिनांक 15 जनवरी 1992 को उसके हित में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया एवं उसके पश्चात वह वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य में था। यह भी अभिकथित किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 गोवर्धन ने अपने जीवन काल में उक्त विक्रय पत्र की वैधानिकता को चुनौती नहीं दी है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व व अधिकार नहीं है और विक्रय पत्र के निष्पादन के पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 2 स्वामी के रूप में आधिपत्य में है। वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 1 के साथ मिली भगत कर यह दावा प्रस्तुत किया गया है एवं बंटवारे का अस्वीकृति दस्तावेज मिथ्या गढ़ा गया है एवं वह कूटरचित दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज के आधार पर वादीगण को उक्त संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता, अतः उक्त अभिवचनों के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 2 चंद्र प्रकाश की माननीय न्यायालय से यह प्रार्थना है कि वह वादीगण द्वारा किए गए वाद को सवैध निरस्त किया जाए। प्रतिवादी क्रमांक 1 की साक्ष्य और साक्ष्य की ओर से ऐसा प्रस्तुत कोई भी साक्ष्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो लेट मी आस्क फॉर अ परमिशन ऑफ अ कोर्ट टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ डिफेंडेंट नंबर 2। प्रतिवादी क्रमांक 2 प्रकाश चंद्र का कथन है कि वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी क्रमांक 1 स्वामी थे और वह उसके आधिपत्य में थी। राजस्व कागजातों में प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम संपत्ति दर्ज थी, इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 2 चंद्र प्रकाश ने संपत्ति को प्रतिफल अदा कर दिया था। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा चंद्र प्रकाश के हित में विक्रय पत्र प्रदर्शित निष्पादित किया गया था एवं निष्पादन उपरांत प्रतिवादी 1 की विवादित भूमि का आधिपत्य करने दिया गया था, तभी से उक्त भूमि पर स्वामी के रूप में आधिपत्यधारी है। यह भी कहा जाता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने जीवन काल में कभी भी विक्रय पत्र की वैधानिकता को चैलेंज नहीं किया था और आधिपत्य के बारे में कोई भी आपत्ति नहीं थी। यह भी कहा गया है कि राजस्व प्राधिकारियों के समक्ष नामांतरण की कार्रवाई के समय भी वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से कोई आपत्ति नहीं दी गई थी। वादी पक्ष द्वारा अभिवचन दिया गया है कि वादग्रस्त संपत्ति वर्ष 1969 में पंचों के समक्ष वादीगण तथा प्रतिवादी 1 के मौखिक रूप में बांटी गई थी तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 92 के अनुसार जहां संपत्ति के अन्य बयान दस्तावेज के रूप में लिखित हैं, वहां पर मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन किया जाता है, मीन्स टू से रिटन डॉक्यूमेंट शैल बी प्रोड्यूस्ड। मात्र वादीगण के कथनों के अलावा अभियोजन पक्ष के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है जो यह साबित करे कि वादग्रस्त संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की थी। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादीगण के उक्त तर्कों का समर्थन भी किया है। प्रतिवादी क्रमांक 2 के अभिभाषक का तर्क है कि वादीगण यह साबित करने में असफल रहे हैं कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी। वादी पक्ष द्वारा यह भी साबित नहीं किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 ने संयुक्त हिंदू परिवार की यह संपत्ति कैसे प्राप्त हुई थी। वादीगण का यह दावा नहीं है कि पूर्व में यह भूमि उनके पिता गयासी राम ने स्वामित्व की थी या संयुक्त हिंदू परिवार के केंद्रक क्रमांक 1 के नाम पर क्रय की थी। यह भी तर्क दिया गया है कि वादीगण का पूरा मामला मिथ्या एवं मनगढ़ंत है। बंटवारे का दस्तावेज कूटरचित है जो दिनांक 15 जनवरी 1992 को विक्रय पत्र निष्पादन के बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 से मिलीभगत कर वादीगण द्वारा तैयार किया गया है। यह सुस्थापित विधि है कि विक्रेता द्वारा उसके हित को छोड़ने के बाद की गई किसी भी प्रकार की विरोधी स्वीकृति क्रेता के पक्ष में संस्वीकृति के रूप में नहीं होगी। यह भी तर्क दिया गया है कि दस्तावेज प्रदर्शित P1 वर्ष 1970 से आधिपत्य में होता तब वादीगण के द्वारा स्वत्व के नामांतरण की कार्यवाही की जाती, जो कि नहीं की गई है और न ही इस संबंध में वादीगण ने अपने कथनों में कोई स्पष्टीकरण किया है, जिससे यह दर्शित होता है कि दस्तावेज प्रदर्शित P1 कूटरचित दस्तावेज है तथा वह मिथ्या है। वादीगण के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अन्य 2 भाइयों को संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का सदस्य क्यों नहीं बनाया गया है तथा विवादित संपत्ति में उनके हिस्से का निर्धारण क्यों नहीं किया गया है तथा संयुक्त हिंदू परिवार की अन्य संपत्ति का बंटवारा क्यों नहीं किया गया है। इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इन तथ्यों को अभिवचन में छपाए जाने से यह प्रकट होता है कि वादी का संपूर्ण वाद बनावटी एवं निराधार है। इसी प्रकार विवादित संपत्ति के कब्जे के संबंध में साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है क्योंकि वादीगण का मौखिक कथन किसी दस्तावेजी साक्ष्य का द्वारा समर्थित नहीं है तथा यह अभिवचन दिया जा चुका है कि विक्रय पत्र के निष्पादन के उपरांत संपत्ति पर प्रतिवादी क्रमांक 2 चंद्र प्रकाश कब्जे में था तथा आधिपत्य में था। दस्तावेज प्रदर्श P3 व प्रदर्श P4 का राजस्व अधिकारियों के कथन के अभाव में कोई भी अन्य साक्षिक मूल्य नहीं है। उनमें वर्णित तथ्यों
की सत्यता की कोई वैधानिक अवधारणा नहीं है। जबकि राजस्व दस्तावेजों में प्रतिवादी क्रमांक 1 गोवर्धन बाढ़ग्रस्त भूमि के भूस्वामी के रूप में दर्ज किया गया है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 की धारा 74 के अनुसार राजस्व दस्तावेज एक लोक दस्तावेज होने के कारण स्वयं ही प्रमाणित है तथा साबित है। उक्त विवादित संपत्ति प्रतिवादी गोवर्धन के नाम दर्ज होने के कारण उसे उस संपत्ति को बेचने का अधिकार था तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 गोवर्धन ने सद्भाव पूर्वक संपूर्ण क्रय धन अदा करके ही उस संपत्ति को क्रय किया है, अतः उसके हित के विरुद्ध कोई घोषणा नहीं दी जानी चाहिए। विंदिष्ट अंतोष अधिनियम 1963 की धारा 19 उपधारा 2 के अधीन भी मूल्यार्थ अंतर्ति के हक को सुरक्षित किया गया है, फलतः वादी का वाद निरस्त किया जाना चाहिए। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात का संदर्भ दिया जा सकता है बी कमलावती बनाम पी बालासुंदरम 2011। उक्त मामले में माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से धारा 19 उपधारा 2 विंदिष्ट अंतोष अधिनियम का हवाला देते हुए कहा है कि सद्भावपूर्ण क्रेता जिसने संपूर्ण सतर्कता के साथ तथा पूर्ण राशि अदा कर किसी संपत्ति पर हक अर्जित किया है, उसके विरुद्ध हक प्रभावित करने वाली कोई घोषणा तथा आदेश नहीं किया है। Defendant number 1 is not liable to sell the partition of the sale deed on the behalf of plaintiff without their knowledge and will. This fact is also proved by the deed of acknowledgement of partition exhibit P1, which has proved by the plaintiff. The plaintiff's position on the disputed land is also proved by the oral and documentary evidence which is submitted by the plaintiff. Therefore, plaintiff is entitled to get the relief as the prayer in plan. So, I request you, the Honorable Court, to recall all the facts and get the relief on the behalf of plaintiff for declaration that they are Bhuswami, salaried, null and void, restrained from any interference in the position of the plaintiff for perpetual injunction. As we have said that there is a good faith of the defendant number 2, but the defendant number 2 is not under the good faith by making the purchasing of the property. He must have known all the facts related to the property, that the property is disputed and there is other owners of the property. They are having any interest over the selling of the property. No, but he did not make all the acquired knowledge on the behalf of the property before he purchased that property. Thank you. सर, माय लॉर्ड, दिस जो साथी अभिवक्ता ने कथन कहे हो उसका मैं खंडन करना चाहूँगा, क्योंकि दिस केस वायलेट द ऑब्जेक्ट ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 विजिलेंटिवस नॉन डॉर्मेंटिवस जूरा सब्लिमेंट मीन्स टू से जो अपने अधिकार के प्रति जागृत नहीं रहता उसका अधिकार स्वतः ही सो जाता है। अगर और मैं कहना चाहूँगा कि मेरे क्लाइंट के पक्ष में पोजेशन भी था, प्रॉपर्टी के राइट्स भी थे और रेवेन्यू ऑफिसर ने भी उनके पक्ष में दिया था, तो उसको बेचने का भी हक था। दैट्स ऑल।
रिश्तेदार द्वारा अतिरिक्त के रिश्तेदार की तथा की हत्या का सामना था के कारण उसे निधन सत्र न्यायाधीश रिसोर्स ट्रस्ट की रेट की गई आदेश द्वारा निरस्त तथा अभिलेख में प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विस्तृत किए जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है। वास्तविक संपत्ति के स्वामी और आधिपत्यशाली थे। वादी के पिता की मृत्यु 2011 में हुई। होने तक वादी उनका एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण वादग्रस्त भूमि का स्वामी हो गया। उच्चवादी देह राजस्व अधिकारी से साक्षात करके वादग्रस्त भूमि हड़पने के उद्देश्य से एक फर्जी वसीयतनामे के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अपना नाम नामांकित करवा लिया तथा वादी को जबरन कब्जे से बेदखल कर दिया था। बात करो उस समय उत्पन्न हुआ जब दीपावली त्योहार के दौरान दिनांक 25/11/2011 को वादी को नामांकन कार्यवाही के संबंध में कि प्रतिवादी के पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। माननीय न्यायालय, मैं आपके समक्ष इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बात है जो इस केस से संबंधित है वह प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शिव कुमार एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य का ये मामला है। इस मामले में माननीय न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि यदि वसीयत को चुनौती देने वाला कोई व्यक्ति वसीयत के निष्पादन के संबंध में कोई धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव जबरदस्ती करता है या आदि का आरोप लगाता है तो उसे सच की दलीलों को साबित करना होगा। लेकिन इस तरह की जो दलीलें इसमें आई हैं वह प्रतिवादी ने साबित नहीं की हैं। माननीय न्यायालय इस तथ्य के आधार पर प्रतिवादी द्वारा जो आरोप लगाया गया है वह खंडनीय है। एक अन्य मामला है इसमें जिसमें यह कहा गया था कि जो प्रतिवादी है तो मोटे तौर पर यह प्रश्न यह निर्माण करना कि वसीयत का प्रश्न जो निर्धारण करेंगे क्या प्रस्तावक ने गणितीय रूप से वसीयत की निश्चित रूप से सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं की है। तो इसमें केवल यह निर्धारित किया गया है कि अधिनियम के तहत जो संदेहास्पद परिस्थितियां होती हैं वह कोर्ट में स्वाभाविक रूप से उनको प्रस्तुत करना होता है, जो कि प्रतिवादी द्वारा गलत आरोप लगाए गए हैं। इस तथ्य के आधार पर यह भी अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी देख नहीं। इकरारनामे की वैधता 3 साल, लिखने की तारीख से या समझौते की तारीख से। यह इकरारनामा वादी के कथन अनुसार 6/1/2015
कोई गंभीर मांग नहीं की गई। मृतका बीमार थी, उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई। अभियुक्त जगदीश मृतका जागृति के पिता बाबूलाल को मृत्यु की सूचना नहीं थी, परंतु वह आए नहीं थे। एक्चुअली उनको सूचना दी थी ससुराल पक्ष वालों ने कि जब वो अपने शिशु के जन्म के उपरांत मायके से ससुराल को आई तो काफ़ी कमजोरी के कारण वो बीमारी से ग्रसित रहने लगी, जिसकी सूचना ससुराल वालों ने मायके पक्ष वालों को दी। परंतु उनकी रूढ़िवादी सोच के चलते उन्होंने हमेशा की तरह अभियुक्तगण का कॉल ससुराल आने के बाद फिर उसको प्रताड़ित किया जाने लगा और 10/10/2013 को यह घटना घटित हुई। उसके कुछ दिन पूर्व मृतका के चाचा चंद्रमान उससे मिलने गए तो मृतका जागृति ने उन्हें बताया कि उसके ससुराल वालों की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है और वह रोने लगी। चंद्रमान ने यह बात अपने भाई को बताई। दिनांक 11/10/2013 को उसका भतीजा दामोदर मृतका के घर गया और वहां पहुंचने पर उसने मृतका के बारे में पूछताछ की तो उसको कोई जवाब नहीं दिया गया। और उसके बाद जब उसने ज़्यादा पूछताछ की तो उसे बताया गया कि मृतका की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई और उसका देह संस्कार कर दिया गया। उसके बाद वह लौट के अपने घर आया और उसने यही सारी घटनाक्रम अपने पिताजी बाबूलाल को बताई। तो बाबूलाल मृतका के ससुराल के गांव गए और उन्होंने वहां पे पंचायत बिठाई। पंचायत में ये बात उन्होंने कहा कि मृतका की अगर मृत्यु बीमारी के चलते हुई तो उन्होंने हमें उसकी जानकारी नहीं दी। तो वो यह बात मृतका के ससुर ने पंचायत में यह बात स्वीकार की कि उनसे गलती हो गई, गलती के कारण वो उनको नहीं बता पाए। तो दिनांक 13/10/2013 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसका अनुसंधान बाद न्यायालय संज्ञान में लिया गया है। अभियोजन पक्ष के साथ निम्न प्रकार हैं। अभियोजन साक्षी क्रमांक मृतका के पिता उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी क्षमता से ज़्यादा विवाह में दान दिया था